Good afternoon, everyone. Dear students, today we will be doing the chapter 1 of your company law, that is membership in companies. Myself, Dr. Meenu Gulati, as you must have recognized my voice. So we start with firstly the meaning of member. Dear students, as a general rule, if we talk about, a member is a person who has acquired share in a company if the company is without with share capital, or a person who has a voting right in a non-share capital company. Normally, if we talk about, the shareholders of a share capital company are its members. The signatories to the memorandum of association of a company are deemed to have accepted to become the members of the company, and it is deemed that their names have been entered in the register of members. This means that any person who has accepted to be a member of a company in writing and whose name is listed in the register of company would be deemed to be a member of the company. So I hope it is clear with the meaning of member. So member here means अगर एक company with share capital है तो उस person के पास जिसके पास company के shares हैं, और अगर company non share capital company है पर उस कंपनी में जिसके वोटिंग राइट्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा. एंड नॉर्मली वी से दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर द मेंबर्स ऑफ अ company. Now let's switch to the next key, who is a member. So dear students, if we talk about, there are various like if you know that the membership of a company is born only out of a contract. So any person who is capable of making contract under Indian Contract Act 1872 can become a member of the company. So the provisions which are defined under the Companies Act are that there are like minor who can become a member of a company can be a member, a subsidiary company can be a member, a partnership firm can be a member, a foreigner can be a member, or a fictitious person can also be a member. So if we talk about, there are many other provisions like an individual can also be a member, and everybody knows that एक individual कौन होगा. Individual एक ऐसा person होगा who is capable of making contract. So this individual can be a member of a company. इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा person जो कि adult है, sound mind का है, और जो प्रोविजंस जो लेड डाउन है कंपनीज एक्ट में, अगर उन्हें समझ सकता है, दैट मीन ही इज़ एबल इनफ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. सेकेंडली, पार्टनरशिप फर्म. अब आप सबको पता है कि एक पार्टनरशिप फर्म ना तो किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकती है, नॉर इट कैन बिकम अ मेंबर बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. बट अगर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म चाहें तो दे कैन बी रजिस्टर्ड एज जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स, और इस केस में जो भी पार्टनर्स होंगे दे कैन बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वी हैव जॉइंट हिंदू फैमिली. So a joint Hindu family can purchase shares in a company through Karta. So Karta can become the member of a company. In the same way, a corporate body or a company can also buy the shares of another company, और फिर इस तरह से वो क्या बन जाएगी, मेंबर, बिकॉज एक कंपनी की लीगल एंटिटी होती है और एक आर्टिफिशियल पर्सन है हमारा कंपनी. बट ये तभी कर सकता है, अ कंपनी कैन ओनली बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इफ़ इट इज़ मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. यानी कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्हें ऑथराइज्ड करे तो एक कंपनी मेंबर बन सकती है. बट ऑलवेज रिमेंबर, एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो कभी भी एक मेंबर नहीं हो सकती ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, और एक कंपनी कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ इटसेल्फ. दैट मीन्स एक कंपनी अपने शेयर्स खुद नहीं खरीद सकती एक्सेप्ट इन अ लिमिटेड मैनर इफ़ इट इज़ परमिसिबल अंडर सेक्शन 67 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड सोसाइटी भी एक मेंबर हो सकती है कंपनी की. तो रजिस्टर्ड अथॉरिटी सोसाइटी कैन बाय इन इट्स ओन नेम
the shares of a company if it is provided in again in memorandum and article of association. Next है insolvent. एक insolvent जो person है, it can continue to be a member of a company provided the rights to his shares are with the official receiver, but then article of association must permit it. If article of association is not permitting this, तो एक जो insolvent है वो कभी भी member नहीं बन सकता. In the same way, a married woman can also be a member of the company. Now as it is mentioned in the slide, a foreigner और एक नॉन रेजिडेंट इंडियन जिसे आप NRI कहते हैं, वो भी एक इंडियन कंपनी के शेयर्स ले सकता है और उसका एक मेंबर बन सकता है, बट फॉर दिस ही हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बट इन केस अगर वो फॉरेन आपका एलियन एनिमी है, एलियन का मतलब कि अगर आपकी कंट्री का उसकी कंट्री के साथ वॉर है, तो फिर उस समय जिस समय दोनों कंट्रीज़ में वॉर है उस समय उसके वोटिंग राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. तो एट दैट टाइम he does not have the voting right if a war is going among his country and your country, but if it is normal between the two countries then he resumes the same voting powers. अब इसी तरह बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर एक माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इट इज़ कंसिडर्ड वॉइड, नल एंड वॉइड. इसीलिए एक माइनर कैन नॉट बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉर इट कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ कंपनी. इन केस इफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ अ माइनर, अगर माइनर का लॉफुल गार्डियन उसके बिहाफ पे शेयर्स खरीदता है, तो देन द गार्डियन कैन बी हेल्ड लायबल एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी बट नॉट द माइनर. नेक्स्ट वी हैव जॉइंट होल्डर्स. तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो जॉइंटली 2 या 2 से ज़्यादा लोग परचेज कर सकते हैं. पब्लिक कंपनी के केस में ईच जॉइंट होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर, बट प्राइवेट कंपनी के केस में द जॉइंट ऑनर्स ऑफ शेयर्स शैल बी डीम्ड टू बी 1 मेंबर. नेक्स्ट है बेटा विच इज़ गिवन द 6th पॉइंट, दैट इज़ फिक्टिशियस पर्सन. सेक्शन 38 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कोई भी पर्सन फिक्टिशियस नेम में शेयर्स परचेज नहीं कर सकता किसी भी कंपनी के. इफ़ अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ कंपनीज शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम और कंपनी अननोइंगली वो अलॉटमेंट कर दे, देन द पर्सन making such application shall be liable for all the obligations and demand as any member of the company. This is what I mean by saying this, that section 38 of Companies Act कभी ये नहीं कहता कि कोई भी पर्सन एक फिक्टिशियस नेम से कोई शेयर्स ले, बट अगर किसी पर्सन ने फिक्टिशियस नेम से शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया और कंपनी ने अननोइंगली वो शेयर्स की अलॉटमेंट भी कर दी, तो जिस पर्सन को चाहे उसने फिक्टिशियस नेम से शेयर्स लिए, अब वो हर लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल होगा. वो बाद में इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि आई एम नॉट द मेंबर क्योंकि मैंने ये शेयर्स फिक्टिशियस नेम से लिए. नेक्स्ट इज़, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने शेयर्स को मॉर्टगेज करके हु हैज़ गिवन अ लोन, he may be accepted to be a member provided he mortgages the shares on the condition that the shares shall be transferred to the company's nominee on the repayment of the loan. Last point है placing of shares. Dear all, if a company has given its shares to a person, अगर एक कंपनी ने अपने शेयर्स किसी ऐसे पर्सन को दिए हैं जो कि उसको इन शेयर्स को फर्दर सेल कर सकता है, तो इस पर्सन को भी होल्डर ऑफ शेयर्स माना जाएगा. तो बट आप ये ध्यान रखें, अगर किसी पर्सन ने कंपनी से शेयर्स लिए हैं इस पर्पस के लिए कि वो इन शेयर्स को सेल करेगा, तो ही विल नॉट बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ मेंबरशिप.
अब इसमें क्या है, इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे टेस्ट ऑफ मेंबरशिप मीन्स कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक कंपनी का मेंबर है भी या नहीं है। तो अगर हम देखें, देखो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है, दैट इज सिग्नेटरी टू द कंपनीज मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर। कोई और पर्सन, दैट मीन्स जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन नहीं किया, उसके लिए ये ज़रूरी है कि ही गिव्स अ रिटन कंसेंट, वो रिटन में दे, वो लिख कर दे कि ही वांट्स टू बिकम अ मेंबर और उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर हो। इफ़ अ पर्सन हैज़ गिवन हिज रिटन कंसेंट but his name is not entered in the company's register, then the person is not deemed to be a member. This means that if a person is not a signatory to the memorandum but he has given a written consent to be a member and his name is entered in the register of members of a company, then he will be deemed to be a member. But in case he has given a written consent but his name is not entered in the register, then he will not be deemed to be a member. तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन कभी भी कंपनी का मेंबर सिर्फ इसलिए नहीं बन जाता इफ़ ही हैज़ ओनली एक्वायर्ड द कंपनी शेयर्स। एक लॉफुल मेंबर बनने के लिए कंपनी का ये ज़रूरी है कि वो पर्सन अपना रिटन कंसेंट दे दैट ही वांट्स टू बी अ मेंबर एंड फिर उसका नाम इज़ एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ members. Fine everybody. So this is very much clear that how will you test that whether a particular person is a member or not. Now shifting to the next topic is difference between member and shareholder. So beta, there are various bases on which we can differentiate between a member and a shareholder. Like first point is a company without share capital. Dear all, अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल या कोई ऐसी कंपनी है विच इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, दैट कंपनी डज नॉट हैव अ शेयर होल्डर्स बट इट डज हैव मेंबर्स। आई रिपीट, एक कंपनी जो कि अनलिमिटेड कंपनी है दैट इज़ विदाउट शेयर कैपिटल या कोई कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं होता। उसके कौन होंगे? उसके सिर्फ मेंबर होंगे। नेक्स्ट इज शेयर वारंट होल्डर। बेटा जो भी शेयर वारंट का होल्डर है, द पर्सन हु इज होल्डिंग शेयर वारंट इज अ शेयर होल्डर बट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बिकॉज as soon as he gets a share warrant, his name is deleted from the register of members। जैसे ही उसको शेयर वारंट इशू होते हैं उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर से डिलीट हो जाता है, तो वो अब क्या होगा? ही विल बी नोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड नॉट अ मेंबर। थर्ड इज़ डेथ ऑफ अ मेंबर। अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितने भी उसके पास शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो जाते हैं और द डिसीज पर्सन, जिस पर्सन की डेथ हुई है, ही रिमेन्स अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बट वो शेयर होल्डर नहीं होता। तो यहाँ पर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बन जाता है? शेयर होल्डर। और जब तक वो शेयर्स उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होते, यानी कि जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं होता, ही इज़ ओनली अ शेयर होल्डर एंड नॉट अ मेंबर। आई अगेन एक्सप्लेन, इफ़ एट द डेथ ऑफ इफ़ सम मेंबर डाइज तो उसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे नहीं, द ट्रांसफ़र टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इस केस में जो पर्सन की डेथ हुई, ही ओन रिमेन्स अ मेंबर ऑफ अ कंपनी बट नो मोर अ शेयर होल्डर बिकॉज ही इज़ नो मोर नाउ। और जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर बन जाएगा, बट वो मेंबर तभी बनेगा जब उस शेयर उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाएगा। फोर्थ इज़ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर्स। बेटा अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जितने भी उसके पास शेयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफिशियल लिक्विडेटर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड हु बिकम्स द होल्डर ऑफ द शेयर। बट जब तक ये ऑफिशियल लिक्विडेटर का नाम मेंबर रजिस्टर में एंटर नहीं होता, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सो नेक्स्ट लास्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। अगर
एक पर्सन अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, तो जो ट्रांसफरी है ही बिकम्स अ होल्डर ऑफ शेयर्स बट ही डज नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। वो मेंबर ऑफ कंपनी तभी बनता है जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है। दैट मीन्स एज सिंपल एज दैट अ पर्सन ओनली बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ हिज नेम एंटर्स इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सो नाउ नेक्स्ट इज वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, कि आप किस तरह से एक कंपनी के मेंबर बन सकते हो। सो सबसे पहले है बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो भी सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑफ अ कंपनी, दे आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम द मेंबर्स ऑफ कंपनी, और जैसे ही कंपनी रजिस्टर होगी दे विल बी एंटर्ड इन देयर नेम विल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कि मेमोरेंडम को साइन नहीं किया बट उसने राइटिंग में ये एग्री कर लिया कि आई वांट टू बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी, और जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर हो गया है, शैल बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब इस केस में देयर आर टू थिंग्स विच आर नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। वन इज योर रिटन एग्रीमेंट, that means you agree to buy the company shares, and then your name is entered in the register of members. Next, third is by agreeing to purchase qualification shares. Companies Act 2013 ये provide करता है कि if a person has signed and filed an undertaking to take and pay for qualification shares, he shall be in the same position if he had signed the memorandum for shares of that number and values. ईजी वर्ड्स में अगर हम बात करें, अगर कोई भी पर्सन ये एग्री करता है कि मैं एक कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर्स को लूँगा और मैं जितने क्वालिफाइंग शेयर्स को लूँगा मैं उनकी पेमेंट भी करूँगा, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय वो क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। बट आप ये ध्यान दें कि ये जो प्रोविज़न है ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज पे अप्लाई होता है, दोज पब्लिक कंपनीज विच हैव शेयर कैपिटल। दिस मीन्स दिस प्रोविज़न डज नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हु इज़ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अ प्राइवेट कंपनी, और अ कंपनी which was a private company before becoming a public company. अब एक और मेथड है जिससे कि आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। द फोर्थ इज़ बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, एंड वन पर्सन कैन ट्रांसफ़र देम टू अनदर बट एज द मैनर, उस तरीके से विच इज़ मैंशनड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जब आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हो प्रोविजंस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली, तो कंपनी क्या करती है, ट्रांसफरर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर देती है, और जिसने शेयर्स परचेज किए हैं यानी कि जो ट्रांसफरी है वो उसका नाम एंटर कर देती है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट इज बाय होल्डिंग आउट और डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। When a person gives his consent to his name being entered in the register of members or gives such consent by his behavior means कि वो कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है, वो डिविडेंड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो he shall be deemed to be a member of the company and he will be liable as a member. Next is by surrendering share warrant. जब कंपनी शेयर वारंट इशू करती है तो जिन जिन लोगों को शेयर वारंट्स इशू किए गए हैं उनके नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से रिमूव कर दिए जाते हैं, और वो अब कंपनी के मेंबर्स नहीं होते और वो क्या हो जाते हैं, शेयर होल्डर हो जाते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ द लास्ट वे इज़ मेंबरशिप बाय लोन। अगर इफ़ अ पर्सन गिव्स लोन टू अ कंपनी अगेंस्ट हिज शेयर्स, तो उस केस में कंपनी आपका नाम
रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लेती है और यू आर डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज